Today there is an invite, Mr. Kamruzaman Chaudhary, for attending the Ram Mandir consecration. However, yesterday the Congress party was sharing a stage with the DMK. The same DMK whose MP TKS Elangovan says, and I quote, BJP has demolished history and replaced it with mythology. Any country should be proud of its history. It should know the history. But Ram's birth is mythology. It is a story from the Ramayana. It is literature. They want to replace history with mythology. That is what the BJP is trying to do. And that is why we are asking, is there a dilemma? Because people can't forget. People will be like, एक दिन पहले आप जो लोग सनातन को डेंगी बोलते हैं, उनके साथ चाय पी रहे हैं. आज आप आकर के राम मंदिर का प्रसाद खा रहे हैं. ऐसे कैसे चलेगा? Mr. Chaudhary. Okay. Yeah, Padmaja, today we are discussing and debating this issue on a day when the IMF has red flagged India's economy and says that around $205 billion is the debt, is touching around 100% of the country's GDP. Mr. Chaudhary, see, this today, is classic. You come, you sidetrack, then MPs. everything goes off on a tangent. I request you, stick to the topic, please. Go on. No, this is the classic debating formula of Padmaja Joshi in diverting the country's issue into something which doesn't have any consequence and is of no significance to the majority of Indians. Are you saying the Ram Mandir consecration is of no significance to a majority of India? I said majority of Indians, not India. Don't differentiate. 80 crore people are still dependent on 5 kg so of you rice. are saying that the Ram Mandir makes no difference to majority of Indians. Invited. Come on, come out of that shell. Come out of that shell, Padmaja, and debate on the real issues. Sir, now, according you to may your not topic consider today, it so, but the Ram Mandir is also an issue for a majority of Indians. And I think in saying what you're saying, you are underlining where the problem lies. It was an issue. If you actually think that what is Ram Mandir? Make a hospital there. What is Ram Mandir? Nobody cares about it. Doesn't matter to Indians. It does. Nobody cares nowadays. Nobody cares nowadays. Ram Mandir is going to be built on that place. It is nearing completion. It is nearing completion. It hardly matters to me. You tell me whether the inauguration of Ram Mandir is a religious event or a political event. First define this for the country. Define it, please, whether it is a religious event or a political event. I think you have very accurately hit the nail on the head when you said it hardly makes any difference to me, and I think it doesn't make a difference to anyone or a majority of people in India. But you raised a relevant question, और समीर जी आप इसका जवाब दीजिए. एक religious event है, उसको political color दिया जा रहा है, and then it is being used to put political opponents in a corner. Why? पद्मजा जी, यह जो राम मंदिर का 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शिलान्यास होना है, ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए सम्मान की बात है, हिंदू धर्म की आस्था की बात है. इन्हें ये एक ड्रामा लग सकता है. जिनके मन के अंदर रोम है, वह उनके मन में राम नहीं रह सकता है. और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सोनिया गांधी को इनवाइट किया है. आप मुझे बताइए सोनिया गांधी क्यों जाएगी? पिछले 40 साल में सोनिया गांधी क्या किसी मंदिर में गई है हिंदुस्तान के? आप मुझे बता दीजिए. क्या सोनिया गांधी ने जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था तो क्या सोनिया गांधी ने बधाई दी थी हिंदू धर्म को? क्या सोनिया गांधी जब प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास भूमि पूजन करने गए थे तब कहा था? मिस्टर चौधरी जवाब दे रहे हैं. इसके पहले जा नहीं सकते थे? मिस्टर चौधरी जवाब दे रहे हैं. 22 जनवरी को आपको इनवाइट किया. Okay, both people are responding to you. Let's very quickly on that limited point that Mr. Chaudhary राहुल गांधी कभी अयोध्या मंदिर दर्शन करने गए? राहुल गांधी कभी भी जा सकते हैं, लेकिन इनके मन में रोम बसा हुआ है. अरे सुनिए सर जी सुन लो, 1 मिनट सुन लो. इतना परेशान होने का बात नहीं है. मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपको, और हिंदुओं के वोट इन्हें लेना आपको. मैं अयोध्या में जाएंगे, अरे फिर आ जाते हो मुसलमानों को. अरे मुसलमानों को क्यों ला रहे हो तुम्हारा राम मंदिर इनॉग्रेशन में? मुसलमानों ने क्या बिगाड़ा है? उसका मस्जिद को शहीद कर लियो. आज भी उस जगह पे मुसलमान बोलते हैं कि मस्जिद रहेगा. Let's keep it to the point. Let's keep it to the point. Yes, respond, Kamruzaman Chaudhary. Let me finish. Please do not try and bring the Muslim community into all these things. The Supreme Court's decision has been accepted by Indians all across, including Muslims. So let it be.
A mandir is going to be inaugurated. Now you go and invite people who you think that they are on a trap now, whether they will come, whether they will not come. It's an absolutely personal decision for a person whether he will be attending the Ram Mandir event or not. Whether Rahul Gandhi goes or whether Narendra Modi. We have seen in May 2019 when our Prime Minister went on the Ekantwas in Kedarnath, meditating in a cave just to garner some extra votes on the voting day. Don't you think that is... Okay, respond Samir ji and then Because we Varun have got a Purohit. I really must bring in Anirban Banerjee also at this point. Samir ji, respond. Politics कौन कर रहा है? ये किसी भी स्थिति में मैं पद्मा जी कहना चाहता हूं, सोनिया गांधी किसी भी स्थिति में राम मंदिर के कार्यक्रम में नहीं जाने वाली है। सोनिया गांधी जानती है कि वो अगर जाएंगी तो जो कर्नाटका में उन्हें लग रहा है कि मुस्लिम वोट मिला है, तेलंगाना में उन्हें जो मुस्लिम वोट मिला है, और 2024 में वो उत्तर प्रदेश से जो मुस्लिम वोट की लेना चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिलेगा। ये तुष्टिकरण की राजनीति करना जानते हैं और इसलिए राम मंदिर के उद्घाटन में ये कभी नहीं जाने वाले। मैं आज आपको बता देता हूं, ये कांग्रेस का कोई भी वहां पर इन्वाइटेड नहीं जाने वाला है। ये बहाना बनाएंगे, ये 15 अगस्त के समय नहीं जाते हैं, ये G20 के समय नहीं जाते हैं और अब ये राम मंदिर के समय नहीं जाएंगे क्योंकि इन्हें मुस्लिम वोट खोने का डर है और यही इनकी दुविधा है। Okay, Varun Purohit ji is vehemently disagreeing. Mr. Varun Purohit. सोनिया गांधी कह सकती थी, राहुल गांधी कह सकती थी, कांग्रेस के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन कह सकते थे। पद्मजा जी, मैं आपको यही कह रहा हूं शुरू से, ये जैसे सोचते हैं जैसे दूसरा सोचे। वरुण जी नहीं जाएंगे, सोनिया जी नहीं जाएंगे, पद्मा जी नहीं जाएंगे। अरे भाई, आपको क्या पता कौन जाएगा नहीं जाएगा? किसी के मन में बैठे हो, दिमाग में बैठे हो आप। ये जो एक 9.5 साल से प्रक्रिया देश के अंदर चल रही है, सोशल फैब्रिक को जो खराब करने का काम चल रहा है, ये सोचें जैसे दूसरा सोचे, ये जैसा करें जैसे दूसरा सोचे। अरे भाई, आपके केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि कौन सी मीट कहां से, मैं तो ब्राह्मण हूं, मुंह से भी नहीं बोल पा रहा हूं, हलाल फलाल पता नहीं क्या बोलते हो, क्या भगवान राम मीट खाते थे क्या? कैसी बातें करते हैं तुम्हारे मंत्री, आपके मंत्री अजीब अजीब करीब। सोनिया जी नहीं जाएंगी, सोनिया जी ऐसे नहीं गई, कभी मंदिर नहीं गई। अरे भाई, आपने आचार्य चाणक्य को पढ़ा है क्या किसी ने? आदरणीय आचार्य चाणक्य ने लिखा है, जिसके मन में मन साफ है, आत्मा साफ है, जिसके मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं आती, उसको तीर्थ यात्रा है, मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। बस आपके हिसाब से चले। अरे भाई, आप कहोगे जैसे होगा क्या? या आप कहोगे जैसे वरुण पुरोहित पूजा पाठ करेगा? आप अपने हिसाब से करो, दूसरा अपने हिसाब से करेगा। आप कैसे कह सकते हो कोई जाएगा नहीं जाएगा? आप बताओ ना। अरे तो आपको उससे क्या दिक्कत है? सोनिया गांधी गई है, उनके अपना थॉट प्रोसेस है। राहुल गांधी में क्या करती है? जाते हैं चुनाव के पहले, जब उन्हें लगता है कि कुछ मेडिटेशन करती है। आप अगर कोई घंटी बजाते हो तो जरूरी है मैं भी घंटी बजाऊं जा करके? क्या अजीबोगरीब बात करते हो? आप जैसे सोचोगे जैसा दूसरा सोचेगा, आप जैसे करते हो दूसरा करेगा। तो बोलो ना कि हम घंटी बजाने मंदिर नहीं जाएंगे। करना चाहते हो पूरे सोनिया गांधी बोले मैं घंटी बजाने मंदिर नहीं जाऊंगी। हर आदमी अपने हिसाब से करता है। सोनिया गांधी बोल देना कि मैं घंटी बजाने मंदिर नहीं जाऊंगी, मैं चर्च में जाने वाली हूँ। सोनिया गांधी को, अरे कैसी बात करते हो आप? सोनिया गांधी बोले ना, कौन मना कर रहा है? बैठ के किसी के लिए क्या मना कर रहे हैं? सोनिया गांधी बोल दे कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, मैं चर्च से जाने वाली हूँ भगवान की। अरे भाई, आप कैसे आराधना करते हो भगवान की? वो कहाँ मना कर रहे हैं? सोनिया गांधी बोल देना करते हो भगवान की, मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, मैं चर्च से जाने वाली हूँ। अरे भाई, क्यों बोले आपको? आप क्या मंदिर जाता हूँ? आप क्या लगते हो सोनिया गांधी जी? सोनिया गांधी बोल देना कि मैं मंदिर नहीं जाती हूँ, तो घर में पूजा करती हूँ। अपने अपने हिसाब से पता नहीं क्या पूरे देश के अंदर एक मूर्ख देश को बताए ना, रहे हो, एक मूर्ख देश को बताया सोनिया गांधी। Okay, Anirban Banerjee, the funny thing is that the moment the December 22 date was announced, immediately everyone said, oh, the BJP wants to corner all the credit, they don't want to share the spotlight. And suddenly, in a very awkward move, not only has Congress been invited, but even the TMC and even the communists who claim to be, some of them at least claim to be atheists, they also have been invited. Now what?